to you, Doctor. Thank you. Thank you for your warm welcome. Thank you for your sweet invitation. And good morning, all of you. Namaskar. Please accept lots of greetings of peace and happiness from my end. Om Shanti. So first of all, thank you. Before I start interacting with all of you, I understand I've got around 45 minutes with all of you. A small, simple, humble request, because as Mandvi ji was, she was introducing me. Basically, I'm a teacher. And for the last 1.5 years, I've been teaching my students online, right? And therefore, there's a standard protocol from our university to we teachers that whenever you should start with a smile, with a very humble request. And that has become a standard operating procedure, that has become a deep sanskar within me. And the standard simple, request is, please keep your videos open. So that's a very, very humble request. I can see many of you with your videos. Thank you very much. The reason is the topic which I am going to interact with all of you is all about managing stress. Certainly, it might be stressful for you to listen to us, but it's a greater stress on the part of the faculty where we interact with no smiling faces. So it's basically our BP starts shooting up. So it's a very, very simple, humble request कि अगर आप अपना videos को on करेंगे और बीच बीच में अगर आप मुस्कुराएंगे, so it would be of great help, great solace to people like us. Okay, so that's a very humble request. बीच में फिर से आप multitasking करते हुए वीडियो ऑफ करेंगे, मैं बड़े स्नेह और प्यार से फिर से आपको रिमाइंड करता रहूँगा. और 1.5 साल में हमको यूनिवर्सिटीज़ ने इतना सर पर बिठा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप स्टूडेंट्स पर बिल्कुल गुस्सा नहीं कर सकते हो. मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, आप तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो. क्योंकि उन्होंने हमें ये डरा भी दिया कि अगर आप थोड़ा सा भी गुस्सा करेंगे ना, तो आजकल के बच्चे उसको रिकॉर्ड कर देंगे और फिर आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगा. तो वो बहुत डरा भी देते हैं हमको. तो एक तो हम गुस्सा कर नहीं सकते हैं, और फिर बच्चे जो हैं सारे वीडियोस ऑफ करते. तो हमको बड़े प्यार से, और 1.5 साल में हम टीचर्स बेसिकली बहुत सुधर गए हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी बिगिन विथ टुडेज सेशन. द सेशन, thanks to Sangeeta Behan who was briefing me, and I really appreciate all of you that you have been going on a very beautiful journey, and you were also doing some kind of a homework also. That's what she told. अच्छा, homework दिया था कि नहीं दिया था? दिया था, हाँ, good ना. She was telling me about some of the homework. और ने कहा स्वामी भाई प्लीज सभी से पूछना कि होमवर्क किया कि नहीं किया, राइट? मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, भाई होमवर्क दिया? सर किधर दिया था सर? तो मुझे फिर उनको व्हाट्सएप में दिखाना पड़ता है कि भाई ये होमवर्क था. तो आप लोगों ने कुछ होमवर्क किया क्या? सॉरी, आई एम नॉट ट्रीटिंग यू एज स्टूडेंट्स हैं. हेलो, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. आप तो सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो. फिर भी जब होमवर्क बोलते हैं ना, तो मेरा भी वो प्रोफेसर का संस्कार बाहर आ जाता है. और संगीता बहन कल रात को बहुत बार रिमाइंड कर रही थी, होमवर्क के बारे में जरूर पूछना. अच्छा, होमवर्क क्या था बस इतना बता दीजिए, किया या नहीं किया नहीं पता है. पूछो मानवी जी, आप ही बता दीजिए, यू हैव गॉट अ वेरी स्वीट वॉइस. अच्छा, होमवर्क क्या था? करने की कोशिश करी थी. नहीं किया, फुल मार्क्स है. आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है. हाँ, होमवर्क क्या था वो याद दिला दीजिएगा. होमवर्क क्या था? होमवर्क था कि whatever one or more speciality others have, I will go on giving water of energy to the seed of speciality and not watering the weakness. हाँ, वेरी गुड. अच्छा, अब चलो मैं ये नहीं पूछूंगा कि होमवर्क किया कि नहीं किया, अभी कर लेते हैं. आप अपनी 1-2 स्पेशलिटी बता दीजिएगा. एक तो मैंने बता दिया कि आपकी वाणी बहुत मधुर है, यू हैव गॉट अ वेरी स्वीट वॉइस. 1-2 आप अपनी विशेषता बता दीजिए, बस बात खत्म. होमवर्क डन. आई विल गिव यू फुल मार्क्स, A+. You just tell me a couple of good visheshtan that you have. I think I'm very compassionate. Very good. I always empathize with people. Wonderful, beautiful. अच्छा, एक काम करिए. Sometimes I have to be tough also, but no, that's very important. Point that I don't forget my empathy there. Good. So thank you very much. तो आज मैं संगीता बहन को कहूँगा, बाप रे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इतने अच्छे थे, सभी ने फुल होमवर्क किया. So I love to give all of them good marks. Okay, चलिए. So thank you for at least you remember your homework. Let's begin with the session. Okay. When it comes to अच्छा, एक और विशेष है, धीरे याद आ रहा है. बोलिए. अच्छा, एक और होमवर्क था. अच्छा, बोलिए. The second homework was that I will play my role, what I've learned, and effectively. I will play my role effectively even if others forget their role. अच्छा, तो रोल प्ले किया?
किया? हम तो रोल तो प्ले करते हैं, बस इफेक्टिवली करने का ध्यान रखेंगे. ओके, गुड. चलिए, so let's continue with this journey. You know, once there's a very beautiful story. I'll begin with the story. ऑफिस ही आजा या एक बार पूछता हुआ आजा उससे, और क्या पूछता हुआ आजा, अभी पूछता हुआ आजा भाई, कब तक दे दोगे? पीओ आपके पास है ही. Okay, चलिए, तो हम शुरू करते हैं. I'll begin with a very beautiful story about managing stress. So in a village there was a monastery, and you might have heard of this beautiful fable. You know, it's a very wonderful story and a very common one. लेकिन मैं ये स्टोरी से शुरू करता हूँ, और आज के सेशन के एंड में आई विल गिव यू अ स्मॉल होमवर्क रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर स्टोरी. So even if it's a repetition, let's listen to this story. क्योंकि आप स्टोरी को याद रखेंगे ना तो होमवर्क भी याद रहेगा, इसलिए मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ. ये there was a village which had a monastery. So the master of the monastery, he was speaking to his disciples about how to manage stress. So he was actually teaching psychology. तो वो कह रहा था, in psychology, if you have to manage stress, it's a question of options. Either you fight or you take a flight. या तो आप कोई भी परिस्थिति होती है, या तो आप उससे युद्ध करो, नहीं तो वहां से भागो. Right, so he was teaching this philosophy and psychology of managing stress, speaking about the fight and flight syndrome, right? And suddenly there was a very big bhukamp. And when this earthquake happened, all the disciples, they ran outside. After a couple of minutes, when this earthquake subsided, so the disciples entered inside the room, and they were surprised to see that the master, very cool and calm, with a very beautiful benign smile on his face. तो डिसाइपल्स ने पूछा, हेलो मास्टर, अभी भी तो आप थियोरी समझा रहे थे अबाउट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस? यस, आई रियली एक्सप्लेन. सर, अभी आपने समझाया था 3 मिनट पहले कि व्हेनेवर यू एनकाउंटर सिचुएशन व्हिच इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, आइदर यू फाइट और यू टेक अ फ्लाइट. ही सेड, यस, आई रियली सेड दैट. तो बोला, सर, when an event is like an earthquake, you actually cannot fight with the earthquake. So we have got only one option, is to take a flight. भागना चाहिए. Sir, we took a flight, we ran, but the person who taught us, at least you should walk the talk, sir. You should practice what you preach. आप तो आराम से अपने स्थान पर बैठे रहे, आप तो फ्लाइट नहीं लिया. So the master very beautifully explained, yes, what I said was very true, that in the event of an earthquake, you cannot fight. So we have only one option, is take a flight. भागना चाहिए. You also ran, I also ran, but the only difference, my dear students, he said, you ran outside and I came within myself. I came within myself. This is a story which we might have heard of this before, लेकिन बहुत ज़रूरत है इस स्टोरी को हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं for the next 1 week इसको प्रैक्टिकली करने की हम कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा प्यार से समझाऊंगा. राइट, the whole focus is about managing stress. We have all heard about fight or flight syndrome. या तो हम युद्ध करें, नहीं तो उस सिचुएशन से हम भागे. राइट, अक्सर कर when you ask people, right, what they do is when they are not able to encounter any situation, they take a flight. लेकिन वो फ्लाइट कहाँ लेते हैं, कहाँ के लिए जाते हैं? We have seen many people in our lives also कि वीकेंड बहुत मेहनत करते हैं और 2 दिन दे टेक अ वीकेंड हॉलीडे. अगर मैं अपनी स्टूडेंट्स की बात करूं तो इतने परेशान है कि आज घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, तो क्या करेंगे, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फॉर सम टाइम दे टेक अ फ्लाइट बाय वाचिंग अ 3 आवर मूवी. और जैसे ही वो 3 घंटा मूवी देखते हैं, दे आर एक्चुअली टेकिंग अ फ्लाइट. बट व्हेन दे रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन, उनको लगता है 3 घंटा वेस्ट भी हो गया, लेकिन मेरा सिचुएशन वैसा का वैसे ही है. तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय टेकिंग अ फ्लाइट, एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एक्चुअली फाइटिंग विद द सिचुएशन, इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. आई रिमेंबर आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कोस्ट गार्ड, राइट, एंड आई वाज देयर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. So I was just explaining to them, my topic itself was managing stress and this fight and flight syndrome. तो मैंने वो कोस्ट गार्ड कमांडेंट से बड़े प्यार से पूछा, सर, व्हेन इज द टाइम वेयर यू एनकाउंटर सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस? सो द कोस्ट गार्ड कमांडेंट वाज अ वेरी थरो जेंटलमैन. ही सेड कि स्वामी भाई, जब आसमान में बादल छाने लगते हैं ना तो हमारा बीपी बढ़ने लगता है.
और जब आंधी तूफान आता है दैट इज अ टाइम वेयर वी एनकाउंटर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। मैंने कहा सर उस समय आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बोला सर उस समय हमारा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो सागर, एक तो लोगों को अवेयरनेस करना कि बहुत आंधी तूफान आने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मछुआरे फिशरमैन दे ऑलरेडी हैव एंटर्ड द डीप सीज, देन वी हैव टू रेस्क्यू देम। तो आई सेड अच्छा इज इट रियली पॉसिबल फॉर देम टू रेस्क्यू? ही सेड कि हम लोग बस देखते हैं, अगर कोई बचा होगा तो हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग एक बात उनसे जरूर बताते हैं। मैंने कहा क्या बात बताते हो? बोला बाई चांस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रूइंग स्टॉर्म एंड सडनली यू आर इन द हाई सीज एंड सडनली यू एनकाउंटर a kind of a cyclone or a storm, usually people क्या करते हैं, उस स्टॉर्म से युद्ध कर कर वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और फिर उन्होंने कहा स्वामी यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल इंग्लिश proverb, and the wonderful English proverb is the eye of the storm is always very peaceful। कोस्ट गार्ड कमांडर ने कहा कि जब वो फिशरमैन लोग ऑलरेडी वो सागर में फंस जाते हैं और बहुत आंधी तूफान आता है, तो अक्सर वो उसे युद्ध कर कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। द राइट मेथडोलॉजी कुड बी यू मूव टुवर्ड्स द आई ऑफ द स्टॉर्म, एंड इन रियलिटी द आई ऑफ द स्टॉर्म इज एक्चुअली वेरी वेरी पीसफुल। तो मैंने कहा सर इज इट रियली प्रैक्टिकल? ही सेड टू बी वेरी ऑनेस्ट स्वामीनाथन, राइट, द स्टॉर्म इज सो डायनेमिक that it is really impossible for you to manage with the pace and the velocity of the storm, but the technology of meditation really helps you to go to the eye of the storm, and the eye of the storm is always very peaceful. What we always do my dear friends, we keep on fighting, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इतना युद्ध करते रहते हैं और इतना उलझते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग उससे बच नहीं पाते हैं, राइट? आई हैव मेड दिस 5 words in Hindi. Mandvi ji, can you translate that in English? Because Sangeeta ji was telling me that all of you have got impeccable Oxford English, right? क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या है? Why? Okay, very good. क्यों, क्या? What? क्या का इंग्लिश क्या है? What? Okay, क्यों, क्या, क्यों, क्या, कहाँ? Where? कैसे? How? कब? When? Wow! So another good विशेषता of you, Mandvi ji. You have got a very good English. Yes. Actually, जब कोई situation आता है ना, हम लोग इतना उलझते हैं. Why, when, where, what, कहाँ, and all that stuff. For some time, we have to detach ourselves from this, and that's what is very, very important. The eye of the storm is always peaceful, right? In our life, we need to explore this. So what is the technology? The technology is, instead of taking a flight outside, can we have a journey within? That's what is very, very important. A journey within, right? There's a very wonderful scientist, Sir Albert Einstein. मुझे आइंस्टीन बहुत बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आइंस्टीन not just understood physics, his IQ was very, very high. He was also able to understand, he was able to master metaphysics also. So I'll read a very beautiful statement of Albert Einstein. Mandvi ji, just keep on repeating with me, okay? Right. मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए. आइंस्टीन कहते हैं, if I had only 1 hour to save the world, बोलेगा? एक काम करेंगे, हेलो हेलो हेलो, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, आप हिंदी में बोलना. If I had only 1 hour to save the world, हिंदी में बोलिए. अगर मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता टू सेव द वर्ल्ड. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है. बट अच्छा, संसार को बचाने के लिए. अरे वाह यार, आपकी राष्ट्रभाषा भी बहुत अच्छी है. I would spend 55 minutes defining the problem. हिंदी में बोलिएगा. मैं 55 मिनट प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा. ठीक है, कोई बात नहीं, डिफाइनिंग इज इंग्लिश, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें समझ में आ रहा है. एंड ओनली 5 minutes फाइंडिंग द सॉल्यूशन. सिर्फ 5 मिनट सॉल्यूशन फाइंड करने में लगाऊंगा. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ही सेज दिस वेरी, एंड ही सेज द प्रॉब्लम इज, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को कोरोना वायरस हो गया, मेरा जॉब नहीं है, मेरी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हो. हम तो इसी में उलझ रहे हैं, राइट? वो कहते हैं इफ आई गॉट ओनली 1 hour टू सेव द वर्ल्ड. सिर्फ मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ.
मेरे पत्नी मेरे हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूं। और आइंस्टीन रियली बुद्धिशाली थे, राइट? ही सेड इफ आई हैव ओनली 1 hour टू सेव द वर्ल्ड, मैं उस प्रॉब्लम में उलझूंगा नहीं, लेकिन 55 मिनट आई विल टेक अ फ्लाइट and only 5 minutes I will use to actually find the solution, defining the problem. That's very very important, right? और पता क्या करना चाहिए? This is what is very very important. एक बहुत shift of awareness. क्या shift करना चाहिए? प्री कोविड सिचुएशन में जब भी हम किसी से मिलते थे तो बड़े प्यार से हम लोग एक प्रश्न पूछते थे, हाउ आर यू, आप कैसे हो? बट दीज डेज थैंक्स टू दैट ब्यूटीफुल इनविजिबल कलरफुल वायरस कि वी आर स्टार्टेड पुटिंग डबल मास्क, राइट? जीवन भर इतने मास्क पहने कि वायरस को आकर रियल मास्क पहनाना पड़ा। माई कास्ट, माई क्रीड, माई जेंडर, माई रिलीजन, माई नेशनैलिटी, माई फैमिली, माई चिल्ड्रन, इतने मास्क पहने हमने क्या वो डबल मास्क की सिचुएशन आ गई। और आज जब हम एक दूसरे से मिलते हैं ना तो एक दूसरे को, है ना, वी आर नॉट एबल टू, है ना, आइडेंटिफाई देम, सो वी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन हाउ आर यू, वी एक्चुअली ask the question who are you. This is a paradigm shift that we have to make. आइंस्टीन ने बड़े प्यार से कहा, और मैं ये इसको रीड करूंगा, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा था, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। सेम कॉन्शियसनेस, अगर एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉफ्टवेयर को, वही प्रॉब्लम की सॉफ्टवेयर को रखते हुए उस, है ना, कारण का निवारण नहीं हो सकता। You will not be able to be a part of the solution. You have to actually change the software. You have to actually change the consciousness. And that virus had to come in to shift that consciousness. Move from how are you to who are you. I always tell my students, whether I'm interacting with my engineering students, MBA students or PhD also, मैं कहता हूँ आप लोग इतना पढ़ाई करते हो ना, लेकिन जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो लास्ट लेवल ऑफ द HR जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें सिर्फ 2 प्रश्न पूछा जाता है, correct? And the 2 questions that they always ask you, Manvi ji, which is the 2 questions that you always ask when you recruit people? Why you want to join our organization? अरे वो ठीक है यार, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा पेमेंट देता है, वो कितनी बार सुनोगे यार, वो सुनते रहते हो आप लोग, और बड़ा अच्छा भी लगता है यार, माय ऑर्गेनाइजेशन इज सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अपनी महिमा सुनकर हर एक को बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। जब वो पहला बंदा गुड मॉर्निंग करके आपके पास आता है तो 2 क्वेश्चंस आप उनसे लास्ट लेवल पर पूछा जाता है। वो ये तो व्हाई डू यू वांट यू टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, वो तो नीचे वाले पूछते रहते हैं। लास्ट बंदा, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एक व्यक्ति पूछता है 2 क्वेश्चंस। और आपको ये पता है 2 क्वेश्चन हमारे बच्चे कितना रटते हैं उस जवाब का। माय गॉड, That's about yourself. हाँ, एब्सोल्युटली राइट, कितना रोटोफाई करते हैं, है ना। 2 क्वेश्चंस दैट यू ऑलवेज आस्क, बहुत प्यार से पूछते हैं। नंबर 1 इज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड नंबर 2 हम लोग पूछते हैं प्लीज टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, है ना। दिस आर 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। आप IIM में जाओ, IIT में जाओ, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो, और मेरे बच्चे बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सर, माय नेम इज सो एंड सो सर, आई डिड माय BE BTech MBA फ्रॉम सो एंड सो इंस्टीट्यूट सर, माय प्रोजेक्ट वाज सो एंड सो सर, माय हॉबीज आर सो एंड सो सर, एंड मानवी जी, राइट, योर ऑर्गेनाइजेशन इज सच अ गुड पे पैकेज, प्लीज गिव मी सो मच ऑफ सैलरी ऑल्सो। ये डायलॉग बोलते हैं। मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यार देखो, व्हेन यू एंटर एन इंटरव्यू हॉल ना, वो जो मैनेजर होता है ना, वो आपका, उसका बायोडाटा आपके पास रहता है, देन व्हाई आर दे आस्किंग यू दिस क्वेश्चन? मेरे बहुत स्टूडेंट्स में ये गलतफहमी रहती है कि सर मे बी दे आर चेकिंग अवर इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स। नो, नॉट नेसेसरली, नो नॉट नेसेसरली। यू नो व्हाई डू वी आस्क दिस क्वेश्चन? क्योंकि हर व्यक्ति के प्रति एक इमेज होता है। यू क्रिएट एन इमेज अबाउट द अदर पर्सन एंड वी ऑलवेज ट्राई टू मार्केट अवर इमेज, एंड मानवी जी वाज एग्जैक्टली डूइंग दिस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। वो डॉक्टर स्वामीनाथन है, वो सियाचिन में गए थे, वो 200 कंट्रीज में, नहीं सॉरी 200 इंडस्ट्रीज में गए थे। यू आर एक्चुअली ब्रांडिंग स्वामीनाथन। और मानवी जी, आप पता ब्रांड क्यों करते हो? क्योंकि आपके लोग इतने बिजी हैं, मंडे मॉर्निंग इतनी मीटिंग्स है और इतना मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप ये बताने की कोशिश करो, हेलो, ये बंदा जो है ना, बहुत फेमस बंदा है, वो सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी के लिए ट्रेनिंग दिया था, थोड़ा तो सुन लो ना इसका। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सियाचिन में गए थे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी। What? How does it impress me? It actually not impresses anybody.
फिर भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है तो आप इंट्रोड्यूस कर देते हो. बट बेसिकली व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पता है वो जब वो बोलता है ना तो मैं दूसरे के प्रति तो बहुत इमेज बनाता हूं, राइट, बट व्हाट इज द इमेज दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ. मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं. जैसे सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर रहे, वर्षों पहले उन्होंने डायलॉग कहा था, टू नो दाई सेल्फ इज एजुकेशन. अपने आप को जानना ही शिक्षा है. एंड वी टीचर्स एंड पेरेंट्स राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चों को डायलॉग बोलते रहते हैं, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन. लेकिन सेल्फ क्या है ये आज तक हमने नहीं बताया. It's very, very important to have a journey within and ask the most fundamental question, right? Who am I? And that's what is very, very important. I was really appreciating people like Einstein क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिजिक्स को नहीं समझा. फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में यही अंतर है. फिजिक्स इज समथिंग दैट वी कैन सी एंड परसीव फ्रॉम आवर आईज, विजिबल आईज. हमारी आंखें जो दृश्य देखती है ना, उस दृश्य से जो हमको दृष्टि मिलती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिक्स. बट मेटाफिजिक्स इज सीइंग समथिंग व्हिच इज इनविजिबल, व्हिच इज इनविजिबल. दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो मैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक क्वांटम डायनामिक्स की तरफ लेकर जाता हूं, टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हु एम आई. वैसे मांडवी जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास. Oh, absolutely right. Drop a line from here, drop a line from here. Meeting point, hypothalamus gland और pituitary gland के बीच में point of light. कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं. In the language of physics, it is called as an energy. In the language of quantum mechanics, it is called as quanta. Q-U-A-N-T-A, quanta, right? लेकिन understanding the self, science has started coming so close to spirituality. I will show you one small beautiful, a clip which helps us to understand spirituality through science. The Fabric of the Cosmos, What is Space? It was hosted by Brian Greene, theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5-minute video clip from that program. As we examine the fabric of the cosmos ever more closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined. Take me, for example. I seem real enough. He touches himself and says, I seem real enough. Okay, but exactly who am I? Don't I? Well, yes. But surprising new clues are emerging that everything, you and I and even space itself, may actually be a kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. Sort of the way... Now this is a very beautiful slide, and if somebody is interested to understand more of this quantum mechanics and this video, at the end I'll share my email ID to you. Just send a mail to me, SMS to me. I will certainly send the link to it so that you can just go through this entire video. मुझे अभी समय की थोड़ी मर्यादा है. प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम लोग इस कॉन्शियसनेस पर रहते हुए, राइट, इस पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर के इस कॉन्शियसनेस में रहकर हम लोग फाइट करते रहते हैं. बट एक्चुअली इफ वी हैव टू टेक अ फ्लाइट, यू हैव टू टेक एन इनवर्ड जर्नी ऑफ हु एग्जैक्टली एम आई. इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, and which I am very, very peaceful. This is what is very, very important. And in the present day time, what is in the present context, what is the greatest challenge that we are all are facing? Job नहीं होना, या salary कम हो जाना, या बच्चों की पढ़ाई नहीं होना, this is all fine, I appreciate. But in the last 1.5 years, one of the greatest challenge the whole world is facing, right, because of the advent of the coronavirus, and as per doctors, the greatest fear is the fear of death. And they have given this event as 100 out of 100.
I remember I was doing a training program for the Indian Air Force, Bangalore station in Yelahanka. तो जब मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था, the wing commander was walking with me. मुझसे पूछा, Sir, are you aware whom you are going to address? I said, yes, I'm aware. There are people from the Indian Air Force. बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है? मैंने कहा, I am not aware. बताइए सबसे बड़ा डर कौन सा है? So this wing commander told me the greatest fear is the fear of death, because the supersonic jets छोटा सा गलती किए and impact and collision and चकनाचूर. Please help them out to come out from this fear. Okay, yes, I'll try. So when I was trying to take a flight, a journey within, and naturally these pilots understand this journey beautifully. तो मैंने उनसे पूछा, what is the greatest fear? So everybody agreed the fear of death. One pilot got up and said, no sir, I don't fear death. मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है. So I looked at that person, smiled at him and said, sir, what you say is perfectly right. आपको अपनी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का फियर होगा. Am I right? He started thinking. His wife was seated beside him. She immediately gets up and says, तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, आपने कभी मेरे भावनाओं, इमोशंस को समझने की कोशिश की है क्या? ढिशुम ढिशुम ढिशुम. वर्ल्ड वॉर 3. किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, ना आपको है ना मुझे है. But we certainly fear the death of our closed ones. And when we hear from the news that the third wave is going to come and it is going to hit our children, our fear index automatically starts shooting up. तो आज एक काम करना, आज जब आप घर पे जाएंगे ना, some of you may be working right online also, work at home भी होगा, आज सारा दिन आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए. इतना मुस्कुराता हुआ होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको देखकर कहेंगे, पापा आज आपका चेहरा इतना गुलाब की तरह खिला हुआ क्यों है? तो बड़े प्यार से कहना, बच्चे टुडे वो आइंस्टीन की बात समझ में आ गए, मोर देन हाउ आर यू, इट्स इंपॉर्टेंट हु आर यू. तो छोटे पूछेगा, पापा क्या? तो बड़े प्यार से बच्चे से पूछना, माय डियर चाइल्ड, डू यू नो हु आर यू? वो कहेगा, वो अपना नाम बताएगा, अपना कौन से क्लास में पढ़ता होगा, आई मीन इंडियन, हम ब्ला ब्ला बोलेगा. वो बस मुस्कुराते हुए सुनते रहना. फिर व्हाट यू डू ना, यू टेक अप योर हैंड, उसको बड़े प्यार से उसको सर पर रखना, मुस्कुराते हुए पूछना, कैन आई टेल यू हु आर यू? एंड द बॉय विल से, पापा प्लीज टेल मी. तो बड़े मुस्कुराते हुए कहना, बच्चे आप हो तारे जमीन पर, तारे जमीन पर. फिर द छोटू इज गोइंग टू आस्क, पापा फिर आप कौन हो? तो बड़े मुस्कुराते हुए कहना, माय डियर बॉय, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. यस, journey within oneself and understanding the reality as to who am I. That's what is very, very important. That's what exactly a shift of consciousness is required, right? Self का full form क्या है? The full form of self is source of energy in light form. अब बच्चे को ना 7th standard physics समझाना, और 7th standard physics पता क्या है? Energy can neither be created nor destroyed. Yes, actually we never die. We play a role for some time and we actually shift to a different body after some time of playing a role. ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, या पहली बार नहीं सुन रहे. बचपन में मैं अमर चित्र कथा पढ़ता था, तो उस समय से मुझे ये पता थी बात. मैंने कोई ज़्यादा शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन अमर चित्र कथा में मैंने ये जाना था, yes, we are different from this body, a point of light, a point of energy. But what is very, very important is, एक होता है physics, दूसरा होता है applied physics. Mathematics, applied mathematics. Similarly, one is spirituality and number 2 is applied spirituality. कहीं ना कहीं मुझे डर अगर लग रहा है, if there is a fear, naturally that applied knowledge is not into being. That's very, very important. तो homework is बड़े प्यार से अपने आप को, जब भी आप है ना दर्पण में देखेंगे ना, तो ये चमकते हुए सितारों को महसूस करना, बड़े प्यार से याद रखना, I am a twinkle twinkle little star. So one of the first homework, मानवी जी जरा नोट करना, right? ये जो है ना नर्सरी राइम जो है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, फर्स्ट पैराग्राफ तो आपको और हमको सबको याद है, राइट? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. इसका सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ भी सुनना, पढ़ना, गूगल में मिलेगा आपको, और एक बार उसके अर्थ को समझना. ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिर्फ आसमान में चमकते हुए सितारे नहीं है, एक्चुअली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये हम सब तारे जो धरती पर आ गए ना, ये हमारी अपनी कहानी है. और आज के जो चारों तरफ जो अंधकार है ना,
That has been so clearly explained in the second paragraph and the third paragraph of Twinkle Twinkle Little Star. And it's high time we teach this nursery rhyme to our children back home before the third wave comes in, you know. And what is very important, how we are going to apply it. I appreciate all the people who are there, particularly Vande Mataram, the ladies who are there, because you have to do multitasking, right? आप कितना सारा काम एक साथ करते हो, ऑफिस को भी संभालते हो, घर को भी संभालते हो, है ना, बच्चों को भी संभालते हो, और आजकल तो मेड आती नहीं तो मेड का भी काम करना पड़ता है. एंड यू कीप ऑन गेटिंग इरिटेटेड, हस्बैंड ऐसा है, बच्चे ऐसे, कोई मुझे मदद नहीं करता है, राइट? एब्सोल्युटली गुड. बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मोर देन ह्यूमन डूइंग, ना, वी हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग. द बीइंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ कर्म योगी बनना है. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस, माय डियर फ्रेंड्स. More than a shift of human doing to human being. So when you shift your awareness, exactly what happens? A shift of awareness from body consciousness to that self-consciousness, that soul consciousness, right? First, जब हम body consciousness में होते, we keep on comparing ourselves with others. But the moment this consciousness shift, more than comparison, it is acceptance. मैं जो हूँ, जैसा हूँ, विथ ऑल माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, मैं जो हूँ जैसा हूँ अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया है. दूसरे जो हैं जैसे हैं, विथ ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, कैन आई एक्सेप्ट देम एज व्हाट दे आर. एंड आई हैव लर्न फ्रॉम द डॉक्टर्स कि बिफोर यू स्टार्ट गिविंग एन ऑपरेशन ना, यू प्लीज हैज टू एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया. हम लोग क्या करते हैं, इतना जल्दी दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं कि ऑपरेशन करने के एनेस्थीसिया देने के पहले हम लोग ऑपरेशन करते हैं. अगर किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन करना है ना, तो जो है जैसा है पहले एक्सेप्ट करो और फिर एनेस्थीसिया दो, और बड़े प्यार से फिर एक सर्जन जैसे ऑपरेट करता है ना, वैसे ऑपरेट करो, राइट? सो मोर देन कंपैरिजन, इट इज एक्सेप्टेंस. सेकंड थिंग, यू नो, बॉडी कॉन्शियसनेस डिवाइड्स अस अ लॉट. वायरस को आना पड़ा हमको समझाने के लिए कि नो, द वायरस डजंट सी एनी कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन. कभी कभी एक देश दूसरे देश से युद्ध करता रहता है ना, तो हम कहते हैं हाँ भाई, देशों के बीच में युद्ध करना तो बहुत स्वाभाविक है ना, चलो देश छोड़ दो. अब एक देश के अंदर आ जाइए. वन स्टेट इज फाइटिंग विद अनदर स्टेट. इट कुड बी वेरियस रीजन, इट कुड बी रिवर वाटर शेयरिंग ऑल्सो, वॉट एवर इट इज, हंड्रेड्स ऑफ रीजन. चलो एक स्टेट के अंदर आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, एकदम वो माइक्रो यूनिट पर आ जाए. एक घर के अंदर सेम कास्ट, सेम क्रीड, सेम रिलीजन, everything the same, maybe blood group also AB positive, फिर भी कितना प्रॉब्लम आ रहा है. तो अगर एक देश दूसरा देश से लड़ रहा है तो घर के अंदर तो सुख शांति चैन होनी चाहिए ना. बट इन दिस 1.5 years ऑफ कोविड, राइट, WHO ने कुछ स्टैटिस्टिक्स बताया था, द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, डिवोर्सेस, इंसोम्निया, ब्ला ब्ला ब्ला. मैं आपका मंडे मॉर्निंग खराब नहीं करना चाहता हूँ, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. कहीं ना कहीं, right, we have to shift ourselves to that soul consciousness which unites people, right? Soul consciousness. तीसरा जो है, sometimes body consciousness makes us a slave of desires, but soul consciousness, it helps us to become the master of senses. That's very important. And the most important thing is body consciousness हमको बहुत डर देता है, and the greatest डर, as I was trying to tell you, it is the fear of death. But the moment you are into the soul consciousness, you are aware of eternity. You are aware of eternity. That's what is the basic paradigm shift, you know. So what you need to do? So this is the homework. Being part. So I, the self. देह का धर्म तो हम सभी जानते हैं, फलाना धर्म, फलाना धर्म. लेकिन the self का ना 3 धर्म है. I, the being, is very loveful, right? Number 1, I, the being, is very loveful. Number 2, I, the being, is very peaceful. Swadharma. And third is I, the being, is very very powerful. मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और मैं शक्ति स्वरूप हूँ. इस बात की स्मृति is what is very very important. तो क्या करेंगे, आज सारा दिन मल्टीटास्किंग करेंगे ना, तो जब भोजन भी बनाएंगे ना, बड़े खुशी और प्यार से भोजन बनाना, राइट? क्योंकि वैसे भी वो मेड तो आ नहीं रही है, भोजन मुझे ही बनाना पड़ेगा. हस्बैंड और बच्चे तो एक्नॉलेज करते ही नहीं है, तो चलो भाई बनाना ही है भोजन, तो बड़े प्यार से भोजन बनाएंगे. कौन कौन बड़े प्यार से भोजन बनाएगा? लेडीज वो जरा हाथ उठाएं, राइट? लेट मी सी यू इन द गैलरी व्यू.
सभी ने भाई, अरे वाह, आई कैन सी सो मेनी पीपल स्विचिंग ऑन दैट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। वाह, जया जी, मांडवी जी, अमरप्रीत जी, यस यस, गीतिका जी, राइट, थैंक यू वेरी मच। आज जब भोजन बनाएंगे ना, बड़े खुशी और प्यार से भोजन बनाना, राइट। अगर आप गुस्से से भोजन बनाएंगे, ये मेरा जीवन है, कैसे जिंदगी भर में भोजन बनाते रहूं, तो अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। और जेंटलमैन लोग क्या करेंगे? जेंटलमैन लोग, हाँ सईराम जी, आपके चेहरे में कितनी मुस्कुराहट है, क्या करोगे भाई? क्या करोगे, है ना? यस, दिस इज वेयर अप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड। अगर व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे ना, उसका जो भोजन बनाया ना, एटलीस्ट महीने में एक बार अप्रिशिएट कर दो, वाह कितना अच्छा दाल बनाया। एक महीने के लिए बहन जी बड़े आनंद की अवस्था, फिर एक महीने के बाद फिर से बोलो, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो यार। एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, अप्रिसिएशन, राइट। एंड पर्टिकुलरली अगर हस्बैंड वाइफ अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि जन्म जन्मांतर के कार्मिक अकाउंट है, बच्चों को तो अप्रिशिएट करो ना, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज द चिल्ड्रन आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। कैन वी बी एम्पैथेटिक? यू एंड मी हैव नॉट फेस द सिचुएशन विच आवर किड्स आर फेसिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पहले भी होमवर्क दिया था संगीता जी ने, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। और बच्चों पे तो गुस्सा इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, क्योंकि दे आर आवर लाउड वंस, राइट, एंड दे आर फेसिंग अ ट्रेमेंडस सिचुएशन। हो सकेगा, इफ पॉसिबल, ट्राई टू अप्रिशिएट योर अदर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भोजन बना रहे, इसको बड़े खुशी से भोजन बनाइए, क्योंकि करना ही है, कर्म तो करना ही है ना, राइट। और जब आप किसी से बात करते हैं, इन योर ऑफिस, विथ योर कलीग्स, विथ योर बडीज, व्हेन यू आर स्पीकिंग, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ मतभेद हैपनिंग, बट आई द बीइंग इज वेरी वेरी पीसफुल, पीसफुल, राइट। और तीसरा, when in case there is an emergency situation, you are faced with a very tough situation, at that time any project you are working and you are cornered from all ends, or maybe the resources are not available, we always face such kind of situations, you know. In such a kind of a situation, I the being is very very powerful, powerful। ये जो अदृश्य ऊर्जा है ना, ये दिखाई नहीं देता है, यू कैनॉट सी। एटम को लोगों ने आज तक नहीं देखा, तो इस आत्मा को कैसे देखेंगे? लेकिन द बीइंग पार्ट को फील करना, I the being loveful in your home sweet home, I the being is very peaceful when you're interacting with your colleagues office में, right, I the being is very powerful when faced with a very challenging situation। ये तीन होगा ना, तो सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। जो लोगों को अच्छी रात को नींद आती है ना, वो सचमुच बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, राइट। पहले जब मैं अपने क्लास में जाता था ना, तो मेरे स्टूडेंट्स को अगर मैं किसी को भी सोते हुए देखता था ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, आई यूज्ड टू गेट टेरिबली एंग्री। बट वंस आई हैव जॉइन्ड दिस ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय, व्हेन आई लर्नड दिस, आज मेरे क्लास में अगर कोई भी सोता है ना, मुझे उसको देखकर इतना अच्छा लगता है कि कुछ पूछो मत। आई फील सो गुड। लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये मेरे स्टूडेंट्स है जो बड़े प्यार से बैठकर ना, है ना, सत्संग सुनते हुए सो रहे हैं। और इसलिए मैंने आपको वीडियो ऑन करने के लिए कहा था। And I see so many people awake, and some people who have switched off the video, and if they have gone off to sleep, my God, you are very very saubhagyashali. That sleep is one of the greatest gift that nature has given to us. पता नींद में क्या होता है? नींद पर जब हम लोग डेल्टा स्लीप में चले जाते हैं ना, 1 to 2 cycle per second, we forget everything, and that is actual journey within ourselves. तो सारे दिन में अगर आप बहुत पीसफुल, लवफुल और इनर स्ट्रेंथ के साथ काम करोगे ना, तो रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सो व्हाट वी, आप कहेंगे स्वामी सर सियाचिन जाकर आपने किया क्या था? वी एक्चुअली ट्रेन देम अबाउट स्लीप मैनेजमेंट, एंड व्हाट वी टेल आवर पीपल एट द डिफेंस फोर्सेस, -53 सेंटीग्रेड एट मोर देन 18,000 फीट अप, हम उनको यही कहते हैं, इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप, बट इट इज द क्वालिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप। और सारा दिन अगर आप पीसफुल, लवफुल, हैप्पी बीइंग, स्टेबिलिटी में आप काम करोगे ना, आप देखेंगे आपकी नींद धीरे धीरे कम होने लगी है, आपको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा, आपका लाइफस्टाइल में जो जो आपको है ना इंटीग्रेट करने का था ना। एंड इसलिए आप देखेंगे पीपल हु आर मेडिटेटर्स ना, दे स्लीप फॉर वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स, वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, राइट। अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज योर वेकअप कॉल, आई एम ट्राइंग टू मार्केट माई सेल्फ, बट आई फील वेरी गुड। माई वेकअप कॉल इन माई पर्टिकुलर मोबाइल, और आजकल तो मोबाइल में अपने रूम पर ही नहीं लेकर जाता हूँ,
My mobile is a digital, my room is a digital free room. मैं अपना लैपटॉप, अपने मोबाइल अपने रूम पर भी नहीं लेकर जाता हूँ. So around 1.5 months before I was teaching my students about digital detox. तो मैंने कहा before I tell them anything I should practice myself. और सबसे पहले पता काम किया मैं मार्केट में जाकर, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा, लेकिन एक अलार्म क्लॉक खरीद के लेकर आया और मैं अपने रूम नज़दीक, बेड के नज़दीक वो अलार्म क्लॉक रखता हूँ. और वो बचपन के दिन मुझे याद आते हैं. जब मैं पढ़ता था तो अलार्म किंग करके काम करता था. मैं अपना मोबाइल को अपने रूम पर लेकर ही नहीं जाता हूँ. राइट. एंड माई वेकअप कॉल, वो एक जैसे अपना क्लॉक होता है ना, तो उसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है. दिस कैन एग्जैक्टली फिक्स इट अप मोबाइल, बट स्टिल माई वेकअप कॉल इज 3:55 AM. मैं सुबह 3:35 को उठता हूँ और मुझे वॉकिंग करने के लिए, अपना एक्सरसाइज करने के लिए, सबके लिए बहुत आराम से टाइम मिल जाता है. सो देर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल्फ मैनेजमेंट. सो एक हफ्ते का आपका होमवर्क देकर मैं वाइंड अप करूंगा. इट्स 10:28. आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑन टाइम. सो व्हाट्स द होमवर्क? मांडवी जी जरा नोट कर लेना, है ना, अगले हफ्ते सबको याद दिलाना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है. फॉर 1 week, fight and flight. We should not fight. Now we should not fight and flight, but we should take the flight first. हम युद्ध कर ना ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन करते हैं, युद्ध कर देते हैं. राइट. हस्बैंड वाइफ इतना युद्ध, फिर एक हफ्ते के लिए बात नहीं करते हैं, तो फाइट करने के बाद फ्लाइट ले रहे हैं. नो नो नो, दैट इज नॉट द राइट वे. द फर्स्ट स्टेप इज टेक द फ्लाइट एंड ए जर्नी विद इन आवरसेल्व्स. नंबर 1. नंबर 2 क्या करना है? जब आप जर्नी विद इन आते हैं ना, फील द पीस विद इन. अपने अंदर जो शांत स्वरूप आपका, हमारा स्वधर्म है ना, उसको महसूस करो. राइट. एंड देन फाइट. फाइट इज नॉट अ राइट वर्ड, सो आई विथ योर परमिशन मैं वो स्लोगन को चेंज करूंगा. इट इज फेस द सिचुएशन आउटसाइड विथ स्टेबिलिटी एंड द इनर स्ट्रेंथ. अगर आपको होमवर्क याद करने में बहुत प्रॉब्लम है तो मैं उसका एक्शन प्लान बता देता हूँ. एटलीस्ट ये तो याद रखना, फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स से शुरू करना. प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. कुछ भी होता ना, फटाक से रिएक्ट मत करो प्लीज. क्या करो? इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्ड करो विथ लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड स्टेबिलिटी. राइट. रिस्पॉन्स विथ पीस, लव एंड स्टेबिलिटी. सो दिस इज the homework and this is the action plan. Right. Let's take 2 minutes to meditate, which I'll help you to take this journey within. आराम से बैठिएगा. Give me permission for the last just 2 minutes. गहरी श्वास लीजिए and slowly exhale. So we are now embarking on this journey within. Relax and slowly withdraw yourself. Light instrumental music will help us to have a journey within ourselves. Relax. Just feel that at the center of the forehead, I am an angel. A twinkle, twinkle little star. This is me. I'm a sparkling point of light, a divine energy. मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूँ. I radiate positive energy. I'm feeling very light and easy because peace is my swadharma. Remember the childhood sweet memories, full of happiness, full of joy. I'm completely free from my past. जो हुआ सो हुआ. बिंदी लगा दीजिए. Let's start afresh. I'm light and I spread the rays of positive energy to this entire world. I am healthy. I am safe.
And for the next 24 hours, I will increase my reaction time and I will respond with peace, love, and happiness. Take a deep breath. Exhale. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Have a very wonderful, beautiful Monday today. And may you, your family members, your kids, your organization be blessed with lots of health, wealth, happiness, and certainly lots of success. Om Shanti. Om Shanti, Doctor. Thank you so much. It was really very enriching and empowering morning for us. Thank you for this. Thank you. If anybody wants any of those quantum dynamics videos, with your permission, I will share my email ID to them. My email ID is evswami@gmail.com. Can anyone put it on the chat for others' reference? evswami. तो एक स्टूडेंट ने पूछा सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवी, तो इट्स ए मलयाली वर्ड ना, तो प्रोनाउंस करने में बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने कहा ई फॉर एलिफेंट एंड वी फॉर विक्ट्री। बोला सर वो अच्छा ये फुल फॉर्म नहीं है, मैं कैन आई हेल्प यू, मैंने कहा बोलिएगा। बोला सर ई फॉर ईगोलेस एंड वी फॉर वाइसलेस एंड देन ओनली यू कैन बिकम अ रियल स्वामी। So it is E for egoless, V for viceless, SWAMI. That's correct, Manvi ji. Basically मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ. My name is Swaminathan, born in South India, and people very lovingly call me Swami Bhai also. तो आप भी मुझे बड़े प्यार से बोल सकते हो. Thank you very much and have a very beautiful day ahead. Om Shanti. Thank you.